જનસંસદ કાર્યક્રમમાં રાહુલ ગાંધીએ ગીગ વર્કર્સ સાથે સાધ્યો સંવાદ, કામદારોના હિત રક્ષણ માટે કડક કાયદાકીય માળખાની કરી માંગ। લોકસભાના વિપક્ષી નેતા રાહુલ ગાંધીએ જનસંસદ કાર્યક્રમ દરમિયાન ઓનલાઈન ડિલિવરી અને પરિવહન સેવાઓ સાથે જોડાયેલા ગીગ વર્કર્સ સાથે સીધો સંવાદ સાધી તેમની સમસ્યાઓ સાંભળી હતી। આ મુલાકાત દરમિયાન રાહુલ ગાંધીએ કામદારોની આર્થિક અસુરક્ષા અને કામના કલાકો અંગે ઊંડી चिंता व्यक्त કરી હતી। તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ગીગ ઇકોનોમીમાં રાત દિવસ મહેનત કરતા આ લાખો યુવાનોને સામાજિક સુરક્ષા અને ન્યાયી વેતન મળે તે સુનિશ્ચિત કરવું એ સરકારની પ્રાથમિક જવાબદારી છે। ગીગ વર્કર્સની વ્યથા સાંભળ્યા બાદ રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકાર પાસે જવાબદાર અને મજબૂત કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી। તેમણે કહ્યું કે આધુનિક અર્થતંત્રના લાભો માત્ર કંપનીઓને જ નહીં પરંતુ પાયાના સ્તરે કામ કરતા શ્રમિકોને પણ મળવા જોઈએ। વિપક્ષી નેતાએ સરકારને વિનંતી કરી હતી કે ગીગ વર્કર્સને કામદારનો દરજ્જો આપી તેમને વીમો, પેન્શન અને આરોગ્ય જેવી પાયાની સુવિધાઓ આપવા માટે ચોક્કસ કાયદો બનાવવામાં આવે જેથી તેમનું શોષણ અટકાવી શકાય। આ સંવાદના માધ્યમથી રાહુલ ગાંધીએ આગામી સમયમાં સંસદમાં પણ આ મુદ્દે અવાજ ઉઠાવવાની ખાતરી આપી હતી। તેમણે ઉમેર્યું કે દેશના આર્થિક વિકાસમાં ગીગ વર્કર્સનો ફાળો અમૂલ્ય છે, છતાં તેઓ અનિશ્ચિત ભવિષ્ય સામે લડી રહ્યા છે। જનસંસદમાં થયેલી આ ચર્ચા બાદ હવે ગીગ ઇકોનોમીમાં સુધારાની માંગ વધુ તેજ બની છે। આ કાર્યક્રમમાં વિવિધ ક્ષેત્રના કામદાર સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમણે પોતાની માંગણીઓ પત્ર દ્વારા વિપક્ષી नेता समक्ष रजू करी હતી। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बना रहा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी सिर्फ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है सर, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को दे रहा, ना कि कानून का कोई सुरक्षा दे रहा। जो हम 5 स्टेट्स में भी जहाँ पे कांग्रेस पुश कर रही है वो स्टेट के लिए कानून बनाने की कर रही है। उसमें राजस्थान पहला बना, दूसरा कर्नाटक बना, तीसरा तेलंगाना ऑन ट्रैक पे है। In India's domestic workers, what percentage come from tribal, Dalit, OBC? Dalits are definitely 80%. Tribals are there about 15%. So the bulk of these people are Dalits and tribals. Yes. Domestic workers. And I would like to say that it is based on the tasks that are done. Yeah. So for cleaning and this thing, it's the tribals and the Adivasis. And the tribals for live-in migrants. The cooking is largely of the OBCs. And the Dalits are told that you can't enter the kitchen and you can't use the toilet that you cleaned. So they must be automatically getting a discrimination. Yes. You see their feedback comments, it reflects that without saying it necessarily in those words, but it reflects that totally. All the caste prejudices that exist. ये बात तो अर्बन कम्युनिटी की जो लड़कियां में ये बहुत ज्यादा होती है कि उनको अंदर नहीं बुलाया जाता। ये दलित है, ये एसटी है, ये एससी है, कैंसिल करिए, हमें अपना वाला चाहिए, हमें अपना रिलीजन। 5 साल से गिग वर्कर में जॉब कर रही हूँ। फील्ड वर्क में लेडीज जॉब करती हैं तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि ना तो हमें कोई वॉशरूम की सुविधा है वहाँ पर, ना पानी मिलता है हमें। लेडीज के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये जॉब, पर हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। मेरे साथ छोटा बच्चा है मेरा 3 साल का, मैं उसको लेके जॉब करती हूँ। 16 घंटे 18 घंटे काम करने के बाद भी हमें 700 रुपये, मुश्किल से ही 800 रुपये ही मिलते हैं। और उसके बाद जैसे कंपनी वाले कस्टमर की ही सुनते हैं, हमारी तो सुनते नहीं। कोई हमारी अगर गलती नहीं है तो भी कस्टमर की बात सुन के हमारी आईडी बंद हो जाती है। हम उसके लिए भी बहुत परेशान हैं। मैं अर्बन कंपनी में काम करती हूँ, महिलाओं को, लड़कियों को। कंपनी में मैं कंपनी में ब्यूटिशियन का काम करती हूँ। सर्विस एट होम 8 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर का दायरा कंपनी ने हमको पॉलिसी में बताया है, बट ये हमको 15 से ऊपर भी भेजते हैं। 30-30, 32-32 किलोमीटर सुबह 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक काम करने के लिए कहते हैं। ये हमसे सैटरडे संडे भी काम करवाते हैं 13-13 घंटे। इन्होंने हमको रेटिंग दिया है, इन्होंने हमको मेंटेन करने के लिए वीकेंड हावर दिए कि आप सैटरडे संडे काम करोगे ही। कोई महीने में छुट्टी नहीं है, सिर्फ एक इमरजेंसी छुट्टी है जो भी किसी की डेथ हो जाए तो ये गिग वर्कर्स का ये कानून आना चाहिए। अगर ये राजस्थान में आएगा तो बहुत सी लड़कियों को, महिलाओं को इसके लिए हेल्प मिलेगी। राजस्थान में लॉ तो सर बन गया, वहाँ पे हमने पूरी कोशिश करी और कैंसिल कर दिया। थक गए सर आंदोलन कर करके। 37 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पूरी हो चुकी है भारत में, $445 बिलियन की प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी सर। सेस कलेक्शन से तो यहाँ पर आराम से 74,000-75,000 करोड़ रुपए आ सकता है, लेकिन सेस कलेक्शन तो सही ढंग से हो, रिप्रेजेंटेशन तो सही ढंग से हो। जोमेटो में गिग वर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ, दिल्ली से हूँ। एक दिन में कितने ट्रिप्स करते हो आप? टारगेट होता है, जैसे नाइट का चला रहे हैं हम तो नाइट में 17 ऑर्डर का टारगेट होता है। 17 इंसेंटिव पूरा करने के लिए। और 17 ऑर्डर में कितना टाइम लगता है टोटल? 6-7 घंटे, 8 घंटे सॉरी। और इसके लिए आपको कितना पैसा मिलता है टोटल? 8 घंटे में 1,000 रुपये के आसपास पड़ते हैं, 1,000-1,100 रुपये। जेब में कितना आता है? उसमें से 50% सर। 50% जी। तो 500 रुपये जी। और अगर आपकी मोटरसाइकिल है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर सब उसी से अपना करना होता है। आपका है वो जी।
होता क्या कि यहाँ किसी तरह का कोई नियम नहीं है गिग वर्किंग में, न तो कोई रेट तय है कि किस समय किसको क्या रेट दिया जाएगा, कोई रेट तय नहीं है। कंपनी अपनी मनमर्जी से देती है। कोई कार्य क्षेत्र का बंधन नहीं है, बना रखी है, बट कोई बाउंडेशन नहीं है उस पर कि कहीं भी किसी को भेज दिया, कोई एरिया नहीं। वो एरिया आपका जाना हुआ हमारा हो या नहीं हो। सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं सुरक्षा की जी, न तो कोई स्वास्थ्य बीमा है, न चिकित्सा की कोई सुविधा है, न ही सामाजिक वातावरण की कोई सुविधा है। दृष्टि से देखा जाता है, दृष्टि से वातावरण होती है। गलती राइडर्स की हो या ना हो, सुनी राइडर की नहीं जाती है, कस्टमर की सुनी जाएगी।